शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাদের স্বাগত জানাই। সঙ্গে আমি অভিজিৎ। শুরুতেই হেডলাইন্স। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। আসানসোলের লচিপুর রেড লাইট এরিয়ায় জেলা শাসক ও পুলিশ কমিশনারের নেতৃত্বে চালানো হলো বিশেষ অভিযান। ৪৫ জনেরও বেশি নাবালিকাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আসানসোলে উৎকর্ষ বাংলা যোজনার অন্তর্গত রাজ্য সরকারের তরফে পশ্চিম বর্ধমান জেলা শাসক বিভু গোয়েলের নেতৃত্বে এডিডিএ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বৈঠক। রানীগঞ্জকে সাব ডিভিশন করার বহু প্রতীক্ষিত দাবি এবার বিধানসভায় তুলবেন বিজেপি বিধায়ক। রানীগঞ্জে এক সাংবাদিক সম্মেলন থেকে এদিন এমনটাই জানালেন কুলটির বিজেপি বিধায়ক ডাক্তার অজয় পদ্মার, বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারিরা। পশ্চিমবঙ্গ হিন্দি একাডেমির তরফে রানীগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বিদ্যার্থী সংবাদ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ হিন্দি একাডেমির অধ্যক্ষ এবং জোড়াসাঁকো বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিবেক গুপ্তা। আগামী 12ই অগস্ট আসানসোলে অনুষ্ঠিত হবে সানমার্ক ফাউন্ডেশনের তরফে রাম অবতার গুপ্ত প্রোৎসাহিত অনুষ্ঠান 2021। রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সের তরফে অনুষ্ঠিত হওয়া অনলাইন ড্রয়িং কম্পিটিশনের স্থানাধিকারীদের করা হলো পুরস্কৃত। প্রতিটি বিভাগ থেকে 4 জন করে স্থানাধিকারীদের করা হলো পুরস্কৃত। রানীগঞ্জের শিশুবাগান মোড়ে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের মূর্তির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব রাউন্ড টেবিল ইন্ডিয়া নিজের কাঁধে নিয়েছে। রানীগঞ্জের বিদায়ী বড় চেয়ারপারসন সঙ্গীতা সারদা মর্মর মূর্তির সৌন্দর্যায়নের কাজের উদ্বোধন করলেন এদিন। তেগাসা সহ পেট্রোল ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরোধিতায় প্রতিবাদ বিক্ষোভ কংগ্রেসের আসানসোলের ঘড়ি মোড়ের কাছে প্রতিবাদ জানিয়ে পোড়ানো হলো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পুষ্পতুলিকা। গত কয়েকদিনে তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে শিল্পাঞ্চল জুড়ে, আর এতেই আশঙ্কা বাড়ছে নিম্ন দামোদর অববাহিকায় মাইথন, পাঞ্চেত ও ডিভিসি জলাধারে জল ধরে রাখা অসম্ভব হচ্ছে। এর ফলেই জল ছাড়া নিয়ে আশঙ্কা বাড়ছে জেলার মানুষের। আসানসোলে জেলা বিজেপির পার্টি কার্যালয়ে রাজ্যে করোনা ভ্যাকসিনের দুর্নীতি নিয়ে সরব হলেন বিজেপি নেতৃত্ব। এলাকার খুদে ফুটবল প্রেমীদের হাতে তুলে দেওয়া হলো ফুটবল। অন্ডালে ষাঁড় গরুর গুঁতনিতে আহত যুবক, আতঙ্কিত এলাকার মানুষ। পুলিশকে অভিযোগ জানানো হয়েছিল, তবু কাজ হচ্ছে না বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর।
कुल्टी के नियामतपुर के लच्छीपुर रेड लाइट एरिया में डीएम और पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन ने चलाया बड़ा अभियान। 45 से ज्यादा नाबालिग लड़कियां हिरासत में ली गई। रेड लाइट एरिया से बरामद की गई नाबालिग लड़कियों को हिरासत में लिया गया और लड़कियों की उम्र 18 वर्ष से भी कम है। इस अभियान का नेतृत्व डीएम वीबू गोयल और पुलिस कमिश्नर अजय कुमार ठाकुर खुद कर रहे थे। वेस्ट बंगाल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के निर्देश पर आसनसोल के कुल्टी थाने के नियामतपुर के लच्छीपुर रेड लाइट एरिया में बुधवार की देर रात छापेमारी अभियान चलाया गया। नाबालिग लड़कियों से देह व्यापार करवाए जाने की शिकायत मिलने पर पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन और आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के तरफ से संयुक्त कार्रवाई की गई। इस अभियान का नेतृत्व डीएम वीबू गोयल और पुलिस कमिश्नर अजय कुमार ठाकुर खुद कर रहे थे। उनके साथ वेस्ट बंगाल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की चेयरपर्सन अनन्या चक्रवर्ती भी मौजूद थी। इस छापेमारी के दौरान लगभग 45 से ज्यादा यौन कर्मियों को पुलिस हिरासत में लिया गया, जिनमें अधिकांश 18 वर्ष से कम उम्र की हैं। रेड लाइट एरिया में देर रात हुई इस छापेमारी को लेकर हड़कंप मच गया। काफी देर तक इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। वेस्ट बंगाल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की चेयरपर्सन अनन्या चक्रवर्ती ने कहा कि लच्छीपुर रेड लाइट एरिया में नाबालिग लड़कियों से देह व्यापार करवाए जाने की शिकायत मिली थी। उसी के आधार पर जांच की गई और फिर यहां अभियान चलाया गया। रेड लाइट एरिया से बरामद की गई नाबालिग लड़कियों को हिरासत में लिया गया है और इनकी उम्र 18 वर्ष से भी कम है। सभी लड़कियों की जाँच कर उन्हें वापस उनके घर भेजने का प्रयास किया जाएगा। डीएम वीबू गोयल ने कहा कि लड़कियों की तस्करी के गोरख धंधे में लिप्त लोगों से ही गुप्त सूचना मिली थी कि नाबालिग लड़कियों से देह व्यापार करवाया जा रहा था। इन नाबालिग लड़कियों को कहां से और कैसे लाया गया था, इसकी जांच की जाएगी। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। उत्कर्ष बांगला योजनार अंतर्गत राज्येर बेकारদের পথ দেখাতে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার। সেই লক্ষ্যে এদিন জেলা শাসক বিভু গোয়েলের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হলো বৈঠক। রাজ্য সরকার উৎকর্ষ বাংলা যোজনার অন্তর্গত আরো বেশি থেকে বেশি সংখ্যায় বেকারদের কর্মসংস্থানের পথ দেখাতে নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করছে, আর এই কাজ চলছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায়। এদিন বিষয়টির প্রেক্ষিতে এডিডিএর গেস্ট হাউসে সভাকক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। জেলা শাসক বিভু গোয়েলের নেতৃত্বে এই বৈঠকে হাজির ছিলেন এই যোজনার সাথে জড়িত আধিকারিকরা। বেকারেরা যথেষ্টই উপকৃত হবেন এর থেকে বলে মত জেলা শাসক বিভু গোয়েলের। एक घंटा पहले मीटिंग हुई हमारी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ। तकरीबन 100-200 लोगों को तो हम लोग ट्रेनिंग वहीं पर दे सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है उसमें सर, आप सर्टिफाइड तो कर देंगे, उसके बाद उनका लाइसेंस मिलने का प्रॉब्लम आ रहा है, वो सर आप कर देंगे तो कम से कम 100-200 लोगों का आपका कम से कम एक अच्छी शुरुआत हो जाएगी। एडीएम ट्रांसपोर्ट हमारे साथ ही बैठे हैं, आरटीओ 5 मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं, है ना। जो भी आपका परमिट से लेकर आपका लाइसेंसेस के इश्यूज हैं, आप अगर उनको अलग से बता दें या व्हाट्सएप वगैरह भी करते हैं, इमीडिएटली टिकट कर दें सर। उनके साथ संपर्क है हमारा, काफी अच्छा हम लोग कर देंगे। संतोष मंडलेर रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स, आसनसोल। रानीगंज को फिर से सब डिवीजन का दर्जा देने की बहुप्रतीक्षित मांग को बीजेपी के विधायक अब पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रमुखता से उठाएंगे। रानीगंज में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुल्टी के विधायक डॉक्टर अजय पोदार, पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी समेत अन्य बीजेपी नेताओं ने रानीगंज को उसका पुराना गौरव वापस दिलाने की मांग की। रानीगंज को सब डिवीजन का दर्जा दिए जाने की मांग लंबे समय से उठ रही है। रानीगंज सिटीजन्स फोरम और रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स समेत कई संगठनों द्वारा समय समय पर रानीगंज को सब डिवीजन का दर्जा देने की मांग पर आंदोलन किया गया है। पश्चिम बर्धमान को नया जिला बनाए जाने के बाद रानीगंज को सब डिवीजन बनाने की मांग और ज्यादा जोर पकड़ने लगी है, लेकिन अब यह मुद्दा राजनीतिक बन गया है और बीजेपी ने भी रानीगंज को सब डिवीजन बनाए जाने के मुद्दे को जोर शोर से उठाया है।
बृहस्पतिवार को रानीगंज में बीजेपी के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रानीगंज को सब डिवीजन का दर्जा दिए जाने की मांग को प्रमुखता के साथ उठाए जाने की घोषणा की गई। बीजेपी नेताओं ने कहा कि कुल्टी, आसनसोल दक्षिण और दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक चुनकर आए हैं और ये तीनों विधायक विधानसभा में रानीगंज को सब डिवीजन बनाए जाने के मुद्दे को उठाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक डॉक्टर अजय कुमार पोदार ने कहा कि रानीगंज को सब डिवीजन का दर्जा देने की मांग पर लंबे समय से लड़ाई चल रही है, लेकिन अभी तक रानीगंज को उसका पुराना गौरव वापस नहीं लौटाया गया है। रानीगंज को सब डिवीजन का दर्जा देने की मांग को बीजेपी के विधायक पश्चिम बंगाल विधानसभा में जोर शोर से उठाएंगे। लड़ाई लड़ी कि आसनसोल के जिला करा हो, आसनसोल के जिला करा हो और रानीगंज के सब डिवीजन करा हो। से लड़ाईते আমরা আংশিকভাবে আসানসোলকে জেলা করতে পেরেছি, কিন্তু রানীগঞ্জের যে ঐতিহ্য সে আমরা ফেরত আনতে পারিনি। বঙ্গভঙ্গের সময় এই রানীগঞ্জের যে ঐতিহ্য ছিল সেটা ওখান থেকে সরে গেছে। আবার আমরা চেষ্টা করব, কেন তিনটাই বিধায়ক এখানে টিএমসি তারা ভোট দিয়েছে, তারা জিতেছে, কিন্তু বিজেপি একে হাউসেও তুলবে और এই কথাটা আমরা জোর গলায় বলবো কি রানীগঞ্জের ঐতিহ্য রানীগঞ্জকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। প্রিন্স ঠাকুরের যে কথাটা বললেন সেটা একটা পাওনা, সেটা 3 বছর আগে যখন এটা পাস হয়ে গেছে তখন এটা করে দেওয়া উচিত ছিল। এখন অবধি তো বিল্ডিংয়ের উদ্বোধন হওয়া উচিত ছিল, সেটা হয়নি। আমরা আবার ওদেরকে রিকোয়েস্ট করব कि আপনারা এসে এটা ইমিডিয়েটলি অ্যাকশন নিয়ে এটা করুন। पूर्व मेयर और बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी ने कहा कि ऐसा कहा जाता है कि देश की आजादी से पहले रानीगंज को सब डिवीजन का दर्जा प्राप्त था। वर्ष 1905 में रानीगंज से सब डिवीजन का दर्जा छिन गया था। हमें खुशी है कि पश्चिम बर्धमान के रूप में नया जिला मिला है और इस जिले में आसनसोल व दुर्गापुर के रूप में 2 सब डिवीजन बनाए गए हैं, लेकिन जिस प्रकार से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उसे देखते हुए आसनसोल और दुर्गापुर सब डिवीजन के बीच रानीगंज, जामुरिया, पांडेश्वर और अंडाल ब्लॉक है और ये चारों ब्लॉक दूसरे इलाकों की तुलना में विकास से वंचित रह गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि इन चारों ब्लॉक को लेकर रानीगंज को सब डिवीजन का दर्जा दिया जाए। इस तरह से रानीगंज के पुराने ऐतिहासिक गौरव को वापस लौटाया जाना चाहिए। পুরনো লোকদের কাছে আমরা জানতে পারি যে রানীগঞ্জ আগে সাব ডিভিশন ছিল এবং 1905 সালে রানীগঞ্জ সাব ডিভিশনের যে মর্যাদা সেটা বিলুপ্ত হয়। আমরা খুবই খুশি যে আমরা নতুন জেলা পেয়েছি, পশ্চিম বর্ধমান জেলা পেয়েছি এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলায় আমরা 2টো সাব ডিভিশন পেয়েছি, আসানসোল এবং দুর্গাপুর। এটা পেয়ে আমরা খুবই খুশি। কিন্তু যেভাবে পপুলেশন বেড়েছে বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা দেখছি যে 2 সাব ডিভিশনের মাঝামাঝি 4টে যে ব্লক আছে, রানীগঞ্জ ব্লক, জামুরিয়া ব্লক, অন্ডাল ব্লক এবং পান্ডেবেশ্বর ব্লক, এই 4টে ব্লকের যে জনবসতি এলাকায় সেখানে অন্যান্য জায়গায় যেভাবে উন্নয়ন হয়েছে এই অঞ্চল কিছুটা হলেও উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত এবং এই অঞ্চলের মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি রানীগঞ্জ ওল্ডেস্ট সাব ডিভিশন ছিল, আবার পুরনো সেই গৌরব ফিরিয়ে দেওয়া হোক রানীগঞ্জকে। रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। पश्चिम बंगाल हिंदी एकेडमी की तरफ से रानीगंज में विद्यार्थी संघ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संवाद कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल हिंदी एकेडमी के अध्यक्ष और जोड़ासांको विधानसभा क्षेत्र के विधायक विवेक गुप्त छात्र छात्राओं से रूबरू हुए। आगामी 12 अगस्त को आसनसोल में सनमार्क फाउंडेशन की तरफ से आयोजित होगा राम अवतार गुप्त प्रोत्साहन 2021। बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल हिंदी एकेडमी की तरफ से लायंस क्लब ऑफ रानीगंज के सभागार में विद्यार्थियों संग संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पश्चिम बंगाल हिंदी एकेडमी के अध्यक्ष और जोड़ासांको विधानसभा क्षेत्र के विधायक विवेक गुप्त को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। वे संवाद कार्यक्रम में पहुंचे छात्र छात्राओं से रूबरू हुए। उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद थे।
अपने बीच विधायक विवेक गुप्त को पाकर सभी छात्र काफी उत्साहित नजर आए और उन्होंने खुलकर अपनी बातों को उनके समक्ष रखा। छात्रों ने अपनी परेशानियों और समस्याओं को प्रमुखता से रखा। विधायक विवेक गुप्त ने छात्रों की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना और उनके समाधान के लिए उन्हें जरूरी परामर्श दिए। विधायक विवेक गुप्त ने छात्र छात्राओं के साथ संवाद में कहा कि रानीगंज आने का 2 ही कारण है, आपसे मिलकर संवाद करना और 12 अगस्त को आसनसोल में सन्मार्ग फाउंडेशन की तरफ से आयोजित होने जा रहे राम अवतार गुप्त प्रोत्साहन 2021 के बारे में जानकारी देना। उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ संवाद करने का मकसद यह है कि छात्रों को कुछ दिक्कतें आती रहती है, इसलिए सीधे उनसे वार्ता करने की जरूरत महसूस हुई। मैं यहाँ आने का 2 ही कारण था, आप लोगों से मिलना, बातचीत करना, क्योंकि यहाँ से हमेशा यहाँ पे विनोद हमारा परिवार का सदस्य है, गोपाल जी हैं, मनोज जी हैं, हमारे शैतान जी हैं, यहाँ स्टेज पे बैठे हुए हैं, सिंटू है, ये लोग बताते रहते हैं कि भाई बच्चों को बार बार कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती है। तो मैंने कहा कि भाई मैं सीधे चल के बात कर लेता हूँ। मैं आप लोगों का ध्यान सबसे पहले दिखाना चाहूंगा, बाएं में एक पोस्टर लग रहा है, शायद लग गया। ये एक स्कॉलरशिप स्कीम है और ये मैं लाया हूं क्योंकि ये सन्मार्ग कर रहा है। 12 तारीख को आसनसोल में ये प्रोग्राम होगा। आप लोग सब इनवाइटेड हैं और जो लोग आना चाहें मगर कोई कारण से खुद नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप लोग मनोज यादव जी से या सिंधु, कहाँ गया सिंधु, कहाँ सिंधु कहाँ गया? अच्छा ठीक है, वो सिंधु है, उससे आप संपर्क कर लीजिएगा। यहाँ से बस की व्यवस्था कर दी गई है, जो लोग भी जाके प्रोग्राम अटेंड करके आना चाहें। ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जो लोग हिंदी में अच्छा मार्क्स लेकर आए और आगे भी हिंदी में पढ़ना चाहते हैं या हिंदी में कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं। क्लास 10 CBSE, ICSE, बंगाल बोर्ड, 12 CBSE, ICSE, बंगाल बोर्ड, कॉलेज, कोई भी अगर स्टूडेंट अच्छा हिंदी में मार्क्स लेकर आए उन सबके लिए है। बोर्ड, यहाँ पे कितने लोगों ने बोर्ड का रिजल्ट मिला? कितने लोगों को इस बार? थोड़ा किसी को भी बोर्ड का रिजल्ट नहीं मिला इस बार? 10 का, 12 का, सब कॉलेज से स्टूडेंट हैं यहाँ पे। अच्छा, स्कूल के, वही तो मैं देख रहा हूँ यूनिफॉर्म। कौन से क्लास में? 10, तो अगले साल वोट देंगे। अच्छा, तो आप लोगों को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। विधायक विवेक गुप्त ने कहा कि राम अवतार गुप्त प्रोत्साहन स्कॉलरशिप कार्यक्रम है और उन छात्रों के लिए है जिन्होंने हिंदी में उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए हैं और आगे चलकर हिंदी में पढ़ना अथवा हिंदी के लिए काम करना चाहते हैं। हिंदी में उत्कृष्टता को समर्पित CBSE, ICSE और बंगाल बोर्ड के 10वीं, 12वीं के बोर्ड परीक्षार्थी अथवा कॉलेज व विश्वविद्यालय के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। संवाद कार्यक्रम में पहुंचे छात्रों को सलाह देते हुए विधायक विवेक गुप्त ने कहा कि अगर आपको आगे बढ़ना है और आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं, सफर आपको खुद तय करना होगा। मगर एक पुरानी कहावत याद आ रही है जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ। प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। आपको अगर स्कॉलरशिप चाहिए, आपको अगर आगे पढ़ने के लिए कोई इंसेंटिव चाहिए, आपको आगे पढ़ने के लिए कोई भी मदद चाहिए, तो आपको थोड़ा खोजना पड़ेगा। मैं आके खाली आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, सफ़र आपको खुद तय करना पड़ेगा। मैं आपको ऑप्शंस बता सकता हूँ, बाकी का काम आपको खुद करना पड़ेगा। टारगेट आपका होना चाहिए, बाकी आप लोगों को करना पड़ेगा। ये इसके अलावा एक हर्ष पाल फाउंडेशन है कलकत्ता में, जो हर साल करीब 100 बच्चों को हायर स्टडीज़ या आगे पढ़ने के लिए स्पॉन्सरशिप देती है। 50,000 से लेकर करीब 2 लाख रुपए तक एक बच्चे को वो लोग देते हैं। और इसी तरह बहुत सारे वहाँ पर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर हमारे साथ 2 कोलीग्स आए हैं हमारे, जानवी और पायल। ये लोग आपको हमारा वो सोशल मीडिया हैंडल बता देंगे। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल हिंदी अकादमी के सदस्य और संवाद कार्यक्रम के आयोजनकर्ता मनोज यादव, तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ के पश्चिम बर्धमान जिला अध्यक्ष
सिंटू भुइया, फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद खेतान विशेष रूप से उपस्थित थे। संजय भंडारी की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। খবরে এখন একটু বিরতির পর থাকছে আবার খবর, সঙ্গে থাকবেন। सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह पब्लिक टाइम्स এই যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বহির্ভূত আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে প্রার্থনা করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। রানীগঞ্জের যে সংস্কৃতি, রানীগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস এবং প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে বহির্ভূত আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসের প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্ত এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মানব অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinodji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel when I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company.
शानदार घर के आपके सपने को पूरा करने के लिए वालका ग्रुप पेश करते हैं रानीगंज का सबसे बड़ा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स कमलाधाम, जो 2 नंबर जातीय सड़क से 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आपको मिलेगी सीमित कीमत पर असीमित लग्जरी सुविधाओं से परिपूर्ण 1, 2 और 3 BHK फ्लैट्स। कमलाधाम में आपको मिलेगा 5G+5 बिल्डिंग्स, स्विमिंग पूल विद किड्स पूल, AC कम्युनिटी हॉल, 55% वर्किंग स्पेस, 24 घंटे पावर बैकअप, 24 घंटे सिक्योरिटी, CCTV सर्वेलियंस, AC जिम्नाजियम, मैरिज हॉल, चिल्ड्रंस पार्क, नियमित वाटर सप्लाई समेत और भी बहुत कुछ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,67,000 रुपए की सब्सिडी और बड़े बैंकों से लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर देर क्यों, आज ही बुक करें अपने सपनों का घर। पता गणेशधाम हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के निकट, जीराडांगा, सियारशोल, रानीगंज। कॉन्टैक्ट 7719356476, 9832733886। কার চয়েস দেখো, মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত। লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ঢোক দিতে চায় আড্ডাতে, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से ऑनलाइन ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। ऑनलाइन ड्राइंग कंपटीशन में लगभग 500 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रत्येक ग्रुप से 4 छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा रानीगंज शिल्पी संघ और श्याम सुंदर रविंद्र कुमार भरतिया फाउंडेशन के सहयोग से ऑनलाइन चित्रांकन प्रतियोगिता आयोजित की गई। ऑनलाइन चित्रांकन प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के लगभग 500 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता में अलग अलग 4 ग्रुप बनाए गए थे। बृहस्पतिवार को रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभा कक्ष में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में पहुंचे अतिथियों ने चित्रांकन प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया। प्रत्येक ग्रुप से 4 छात्रों को पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार के रूप में छात्रों को ट्रॉफी एवं प्रमाण पत्र दिया गया। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की निर्णायक मंडली में शामिल सलाहकार राजकुमार क्यार, विजय कुमार खेतान, राजेंद्र प्रसाद खेतान द्वारा पुरस्कारों के लिए छात्रों का चयन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए आसनसोल नगर निगम के प्रशासक बोर्ड के सदस्य पूर्णशशि राय ने कहा कि छात्र छात्राओं का उत्साह बढ़ाने एवं उनके भीतर छिपी प्रतिभा को सामने लाने के लिए चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि रानीगंज में एक आर्ट गैलरी बनाने की योजना है। अगर उनके पास लिखित रूप से प्रस्ताव आता है तो इसके लिए वे रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक तापस बनर्जी से बातचीत करेंगे और नगर निगम की जमीन पर आर्ट गैलरी का निर्माण किया जाएगा। আপনারা আসানসোল পৌর নিগমের পক্ষ থেকে আমরা একটা আর্ট গ্যালারি করেছি। 2 বছর হলো আসানসোলে খুব সুন্দরভাবে সেটা আমরা চালাচ্ছি এবং বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান আর্ট গ্যালারিতে হচ্ছে। রানীগঞ্জে গড়ে হচ্ছে রানীগঞ্জ শহরের মধ্যে একটা আর্ট গ্যালারি করা। তো আমি তো খুব ভাগ্যবান যে আমি আমার বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়কে পেয়েছি, যিনি বিধায়ক আছেন। তো আমি তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলে আমরা আসানসোল পৌর নিগমের পক্ষ থেকে রানীগঞ্জে আমাদের জমি প্রচুর জমি আছে, অনেক জমি আছে, ভালো ভালো জায়গায় জমি আছে।
আপনারা আমাদেরকে একটা চিঠি দেবেন, আমরা চেষ্টা করবো বিধায়কের সঙ্গে কথা বলে আমরা রাজনীতিটা আড্ডাদারি করা যায়। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव अरुण भरतिया ने कहा कि ऑनलाइन चित्रांकन प्रतियोगिता को लेकर छात्र छात्राओं में काफी उत्साह देखने को मिला और छात्रों ने काफी बढ़ चढ़कर प्रतियोगिता में भाग लिया। रानीगंज शिल्पो संघ एवं मेरा फाउंडेशन श्याम सुंदर रविंद्र कुमार भरतिया फाउंडेशन की तरफ से हमने सोचा कि बच्चे घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, इसीलिए हमने एक ऑनलाइन ड्राइंग कंपटीशन कराया था। इसमें बच्चों को घर पे ड्राइंग करके रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में फिजिकली ड्राइंग को जमा करना था। इसमें लगभग 3-4 ग्रुप थी, उसमें 500 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। हमने हर ग्रुप से 4-4 बच्चों को प्राइज़ दिया है और बच्चा का उत्साह बढ़ाया है। हमारे इस प्रोग्राम का उद्देश्य एक ही है कि हमारे दादाजी श्री श्याम सुंदर भरतिया एवं हमारे फादर रविंद्र कुमार भरतिया जी का हरदम एडुकेशन के प्रति लगाव रहता था। कभी भी एडुकेशन के लिए वो हरदम काम करना चाहते थे। आज उनके जाने के बाद मैंने इस फाउंडेशन की स्थापना की है और गत 3 साल से मैं इस तरह के कंपटीशंस करवा के बच्चों का उत्साह बढ़ा रहा हूँ। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारी अध्यक्ष रोहित खैतान ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से पिछले 2 वर्षों से बच्चे स्कूलों से दूर हैं। ऐसी स्थिति में छात्रों को रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म देने का प्रयास किया है और उनके लिए ऑनलाइन चित्रांकन प्रतियोगिता आयोजित की है, जिससे कि उनका उत्साह बढ़ाया जा सके। स्कूल से 2 साल से नहीं जा पा रहा है, दोस्तों से दूर है, रेगुलर रूटीन से दूर है, उनके साथ उनको हम लोगों ने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म दिया, एक ऑनलाइन कंपटीशन जो कि कोरोना काल में जो कुछ हो सकता था उसके पैरामीटर्स में गाइडलाइंस में आयोजित की और ऐसे में हमें सहयोग मिला रानीगंज शिल्पी संघ का। कार्यक्रम में मुख्य रूप से एसकेएस पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल संदीप कुमार सिन्हा, पूर्व इंटरनेशनल स्कूल के वाइस प्रिंसिपल सूर्य शंकर राय, ट्रैफिक पुलिस अधिकारी प्रोसेनजीत बसाक, रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रदीप बाजोरिया, कोषाध्यक्ष रूबी गढ़वाला, सांगठनिक सचिव मनोज केसरी, संयुक्त सचिव अरुमय कुंडू और एजुकेशन कमेटी के को चेयरमैन रमेश लॉयल का प्रमुख रूप से उपस्थित थे। संजय भंडारी की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। रानीगंज शहर के शिशु बागान मोड़ के पास स्थित कवि काजी नजरुल इस्लाम की मूर्ति के रखरखाव और सुंदरीकरण का दायित्व राउंड टेबल इंडिया ने अपने हाथों में लिया। पूर्व बोरो चेयरपर्सन संगीता शारदा ने मूर्ति के रखरखाव एवं सुंदरीकरण कार्य का शुभारंभ किया। रानीगंज शहर के शिशु बागान मोड़ के पास स्थित काजी नजरुल मूर्ति के सुंदरीकरण का दायित्व राउंड टेबल रानीगंज दुर्गापुर चैप्टर 271 ने अपने हाथों में लिया है। बृहस्पतिवार की शाम आसनसोल नगर निगम के 2 नंबर बोरो की पूर्व चेयरपर्सन संगीता शारदा ने विधिवत रूप से काजी नजरुल इस्लाम की मूर्ति के सुंदरीकरण कार्य का उद्घाटन किया। दरअसल राउंड टेबल द्वारा न सिर्फ काजी नजरुल इस्लाम की मूर्ति का रखरखाव किया जाएगा, बल्कि इसकी परिधि का भी सुंदरीकरण किए जाने की भी योजना बनाई गई है। पूर्व बोरो चेयरपर्सन संगीता शारदा ने कहा कि राउंड टेबल ने यह काफी सराहनीय कार्य किया है। विद्रोही कवि के नाम से मशहूर काजी नजरुल इस्लाम की यादें रानीगंज से जुड़ी हुई है। शिशु बागान मोड़ के पास उनकी मूर्ति और इसके सामने वाली जगह का सुंदरीकरण किए जाने से यह लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होगी। इस एंगल से ले सब कुछ बहुत अच्छा किया और आगे भी उनको इसको और बेटर करने के लिए उनका आगे भी प्रयास जारी। राउंड टेबल इंडिया के चेयरमैन अरिहंत बोरार ने कहा कि अब से विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम की मूर्ति के रखरखाव एवं सुंदरीकरण का दायित्व राउंड टेबल के सदस्य संभालेंगे। हमारी कोशिश होगी कि इस जगह को ज्यादा से ज्यादा आकर्षक बनाया जाए, जिससे कि लोगों का ध्यान आकर्षित हो। जो शिशु बागान का राउंड अबाउट है, इस राउंड अबाउट को हमने अडॉप्ट किया है। इसका मेंटेनेंस और इसका रखरखाव और इसका ब्यूटिफिकेशन के लिए हम लोग काम करते रहेंगे और ये राउंड टेबल इंडिया का एक लैंडमार्क के हिसाब से यहाँ पे हमेशा के लिए रहेगा। इसको मेंटेनेंस करने का काम राउंड टेबल इंडिया। अच्छा, पश्चिम बर्धमान जिले में मतलब कितने स्टैचू या और कुछ अडॉप्ट किए आप? ये हमारा फर्स्ट स्टैचू है, राउंड अबाउट है जो हमने अडॉप्ट किया है मेंटेनेंस के लिए। आगे हमारा और भी प्लानिंग है, दुर्गापुर आसनसोल वगैरह में भी अगर हम लोगों को चांसेस मिलती है ऐसा मेंटेनेंस करने का तो। इस अवसर पर राउंड टेबल के वाइस चेयरमैन मनीष लखोटिया, एरिया चेयरमैन अमित कुमार जैन,
सचिव मनीष डागा, सिद्धार्थ शारदा, मुकेश शर्मा, पूर्व अध्यक्ष प्रियेश दास समेत अन्य सदस्य उपस्थित थे। रानीगंज से रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। आसनसोल शहर के घड़ी मोड़ के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया। पेगासस जासूसी कांड तथा पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की मूल्य वृद्धि को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। पेगासस जासूसी कांड तथा पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की मूल्य वृद्धि के खिलाफ बृहस्पतिवार को आसनसोल शहर के घड़ी मोड़ के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति के समक्ष कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी जलाया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष SM मुस्तफा ने पेगासस जासूसी कांड को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार विरोधी दलों के नेताओं की फोन टैपिंग करवा रही है। इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों की वजह से देश में महंगाई बढ़ रही है, लेकिन केंद्र सरकार को आम जनता की थोड़ी भी फिक्र नहीं है। हमला करके यूथ कांग्रेस के बैनर तले पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। वहीं आसनसोल पश्चिम बर्धमान जिला बर्धमान यूथ कांग्रेस की तरफ से पेगासस जासूसी के मामला में आज यहाँ पे सभा हुआ और मोदी जी का पुतला दहन किया गया। जिस तरीके से अंग्रेज देश में जासूसी किया करते थे, ये अंग्रेज के दलाल सरकार, मुखबिर सरकार आज उसी तरीके से अंग्रेजों के पथ पर रास्ते पर चल रही है। जासूसी सरकार ये जासूसी करा रही है। जहाँ एक तरफ किसान आंदोलन पर है, जहाँ एक तरफ बेटियों का चीरहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, जहां दूसरी तरफ बेरोजगार नौजवान देश में हाहाकार मचा हुआ है, जहां पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा हुआ है, वहीं पर ये मन की बात करने वाला हिटलर राजशाही सरकार नरेंद्र दामोदर दास मोदी, बीजेपी और एनडीए की सरकार लोगों की बात ना सुन करके अपनी मन की बात सुन रहे हैं। ये ठीक हिटलर की तरह हुकूमत कर रहे हैं। इसलिए आज हम लोगों ने मोदी और अमित शाह जी का युवा यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में पुतला दहन किया है इस आसनसोल सरजमीन पे, और इसको हम लोग गुलाही नदी में जाकर के बहा देंगे इसकी राख को। और जो जिस तरीके से देश में महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रहा है, दिन ब दिन तेल का दाम बढ़ रहा है, एक दिन हिंदुस्तान वासी इसको देश से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। খবরে এখন সময় আবার একটু বিরতির পর ফিরে আসছি আবার খবর নিয়ে, সঙ্গে থাকুন। আপনার স্বপ্নের বাড়ি এখন হাতের মুঠোয়। বাঁকে বিহারী ধাম 2 নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে গোপাল মাঠের মোহনপুর মৌজায় এই পরিবেশ বান্ধব 150 বিঘের টাউনশিপে থাকছে নানান ধরনের প্লট, থাকছে ডিউপ্লেক্স, বাংলোর উপযোগী প্লট। বাঁকে বিহারী ধামের আবাসিকদের জন্য থাকছে জগিং এরিয়া, সুইমিং পুল, গার্ডেন, মন্দির, ক্লাব হাউস, হাসপাতাল, কমার্শিয়াল মার্কেটের মতো অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধে। বাঁকে বিহারী ধাম থেকে মাত্র 5 মিনিটে পৌঁছে যাবেন অন্ডাল বিমানবন্দরে। তাই আর দেরি না করে যোগাযোগ করুন। সাইট অফিস বাঁকে বিহারী ধাম, গোপাল মাঠ, দুর্গাপুর 17। মোবাইল 8116439755 9932484359 7001804855 9932820784 অথবা যোগাযোগ করুন আমাদের প্রধান কার্যালয় A/24 বাঁশরা রোড, রামবাগান, শিহারশোল, রানীগঞ্জ। মোবাইল 9434312120 7001804855। গত কয়েকদিনে তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে শিল্পাঞ্চল জুড়ে, আর এতেই আশঙ্কা বাড়ছে নিম্ন দামোদর অববাহিকায়। বৃষ্টিপাত নিয়ন্ত্রণে না এলে মাইথন, পাঞ্চেত ও ডিভিসি জলাধারে জল ধরে রাখা অসম্ভব বলে জানানো হয়েছে। এদিকে প্রায় বিপদসীমা ছুঁই জলাধারগুলিতে জলের উচ্চতা বাড়াচ্ছে আশঙ্কা।
ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিম বর্ধমানে গত 24 ঘন্টায় তুমুল বর্ষণে ফের আশঙ্কার কালো মেঘ দেখা দিয়েছে নিম্ন দামোদর অববাহিকায়। মঙ্গলবার জল ছাড়ার পরিমাণ কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এনেছিল ডিভিসি, কিন্তু ফের বৃষ্টির জেরে হু হু করে জলস্তর বাড়তে শুরু করেছে পাঞ্চেত ও মাইথন জলাধারে। বৃষ্টিপাত নিয়ন্ত্রণে না এলে টৈটুম্বুর জলাধারে জল ধরে রাখা প্রায় অসম্ভব, তাই ফের বিপুল পরিমাণ জল ছাড়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। মঙ্গলবার থেকে বুধবার সকাল পর্যন্ত শুধু আসানসোলেই বৃষ্টিপাত হয়েছে 64 মিলিমিটার। সেই বিপুল পরিমাণ জলও মিশেছে দামোদরে। ব্যারেজগুলিতেও জল ছাড়ার পরিমাণ বাড়লে বন্যা পরিস্থিতি আরো অবনতি হতে পারে বলেই আশঙ্কা করা হচ্ছে। আর এই মতো অবস্থা চলতে থাকলেই বন্যা পরিস্থিতি অবনতি হবে। ডিবিসি সূত্রে জানা গিয়েছে বুধবার মাইথন থেকে 20,000 ও পাঞ্চেত থেকে 35,000 কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। মাইথনের বিপদসীমা 495 ফুটের মধ্যে 489 ফুট পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। পাঞ্চেতের বিপদসীমা 425 ফুট, এখন জল বইছে 430 ফুট উচ্চতায়। এমত অবস্থায় ঝাড়খণ্ডে বৃষ্টি হচ্ছে, স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন জায়গা থেকে বিপুল পরিমাণ জল আসতে শুরু করেছে ওই জলাধারে, তাই বিপদসীমা অতিক্রম করলেই জল ছাড়বে ডিভিসি। বাড়তি সমস্যা বাড়িয়েছে শিল্পাঞ্চলে বৃষ্টিপাত, সেই জল গিয়েও মিশছে দামোদরে। দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে বুধবার বিকেল পর্যন্ত 60,875 কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। আর ডিবিসি থেকে এই জল ছাড়া নিয়ে ফের কেন্দ্র রাজ্য তরজাও শুরু হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় জেলার রাজনীতিতেও ফের প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, ব্যারেজের পলি তোলার কাজটি কি হবে? বিরোধীদের বক্তব্য, পলি পড়ে দুর্গাপুর ব্যারেজের গভীরতা অনেকটাই কমে গিয়েছে, ফলে জল ধারণের ক্ষমতাও কমেছে। ব্যারেজের পলি তোলা হয়ে গেলে বন্যার আশঙ্কাও অনেকটা কমে যাবে বলে তাদের মত। এদিকে ডিবিসি সূত্রে জানা গিয়েছে ব্যারেজ তৈরির সময়ে জলাধারের গভীরতা ছিল 6.1 মিলিয়ন ঘনমিটার। 2011 সালে সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে পলি জমে তা হয়েছে 3.397 মিলিয়ন ঘনমিটার। অনুপাত গত 10 বছরে আরো পলি জমেছে। জলাধারের জল ধারণ ক্ষমতাও কমেছে পাল্লা দিয়ে। পাবলিক টাইমস। আসানসোলে জেলা বিজেপি পার্টি কার্যালয়ে এদিন রেলপার এলাকার একটি খুদেদের ফুটবল টিমের হাতে বিজেপির তরফে তুলে দেওয়া হলো ফুটবল। পাশাপাশি রাজ্যে ভ্যাকসিন দুর্নীতি নিয়ে সরব হন এদিন বিজেপি নেতৃত্ব। আসানসোলে বিজেপি জেলা পার্টি কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এদিন এলাকার বাচ্চাদের মধ্যে খেলাধুলার উৎসাহ যোগাতে ফুটবল বিতরণ করা হলো বিজেপি তরফে। আসানসোল রেলপার এলাকায় শিশু কিশোরদের একটি ফুটবল টিমের হাতে বলটি তুলে দেওয়া হয়। বিজেপি নেতৃত্ব জানিয়েছেন শিশু কিশোরদের খেলাধুলায় উৎসাহ যোগাতেই এই উদ্যোগ। পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সময়মতো পড়াশোনার সামগ্রীও বিতরণ করা হচ্ছে তাদের তরফে। নেতৃত্বের কথায়, রাজ্য সরকারের কাছে নেতৃত্বের আর্জি সময় মতো যাতে ওই শিশু কিশোরদের কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা করে সরকার, তাহলেই তারা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের মুখ দেখতে পাবে। बड़े बड़े सामाजिक तैयारी होते हैं हम लोगों का, जो सुख सुविधा नहीं मिलता है। छोटे छोटे बच्चा को खेलने के समय में खेल नहीं मिलेगा, पढ़ने के समय में किताब नहीं मिलेगा और नौकरी नहीं मिलेगा गवर्नमेंट का, तो इस तरह असामाजिक तत्वों का बढ़ावा मिलता है। इसलिए आज बीजेपी सोचा है कि जितने छोटे छोटे बच्चे हैं सबको खेल का सामान, पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ने का सामान, और सरकार से आग्रह है कि समय अनुसार सबको नौकरी दिया जाए, और ताकि हमारा असामाजिक कार्यविधि कम हो पश्चिम बंगाल में। এদিন অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন বিজেপি নেতা শঙ্কর চৌধুরী। তিনি এদিন রাজ্যে ভ্যাকসিন দুর্নীতি নিয়ে সরব হন। বলেন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বিহার ঝাড়খণ্ডে গিয়ে ভ্যাকসিন নিচ্ছেন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ রাজ্যে ভ্যাকসিন পাচ্ছেন না। এটা যথেষ্ট লজ্জাজনক। वैक्सीन जो वैक्सीनेशन पश्चिम बंगाल में हो रहा है, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि पश्चिम बंगाल से लोग झारखंड जाते हैं, बिहार जाते हैं वैक्सीन लेने के लिए। सरकार, केंद्र की सरकार वैक्सीन देती है और पश्चिम बंगाल की जनता को वैक्सीन नहीं मिलता है। यह बहुत दुख और दुर्भाग्य की बात है। यहाँ से लोग झारखंड और बिहार जाके वैक्सीन लेके आते हैं। पहले एक ज़माना था जिस ज़माने में पश्चिम बंगाल लोग नौकरी करने के लिए, पढ़ने के लिए, चिकित्सा कराने के लिए बिहार, यूपी, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र से आते थे। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। ये ऐसी निकम्मी सरकार पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार, जो आज पश्चिम बंगाल का स्टूडेंट को दूसरे प्रांतों में जाकर शिक्षा ग्रहण करना पड़ता है, चिकित्सा के लिए बेंगलोर, दिल्ली जाना पड़ता है, महाराष्ट्र जाना पड़ता है। ये बहुत दुख की बात है। इसके लिए
हम लोग चाहते हैं कि ऐसी सरकार को पश्चिम बंगाल में रहने का 1 मिनट भी अधिकार नहीं। সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, আসানসোল। অন্ডালের ষাঁড় গরুর গুঁতুনিতে গুরুতর আহত যুবক। অন্ডালের সাউথ বাজার এলাকায় বুধবার রাতে এই ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে স্থানীয়দের মধ্যে। পুলিশ আহতকে উদ্ধার করে পাঠিয়েছে চিকিৎসায়। ষাঁড়ের গুঁতুনি খেয়ে গুরুতর জখম এক যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে অন্ডালের সাউথ মার্কেট এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বেশ কয়েকদিন ধরেই ওই এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল একটি ষাঁড়। মানুষজনকে দেখলেই তেড়ে আসছিল বলে জানিয়েছে প্রতিবেশীরা। গতকাল রাত্রে রাজু জসবাল নামের এক ব্যক্তিকে ওই ষাঁড়টি গুঁতিয়ে গুরুতরভাবে আহত করে দেয়। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ। এরপর ওই আহত যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালের উদ্দেশ্যে নিয়ে যায় পুলিশ। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। স্থানীয়দের অভিযোগ, পুলিশকে এর আগেও ওই ষাঁড়টির ব্যাপারে জানানো হয়েছিল, তবে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। এই ঘটনার পর থেকে তারা আরো ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন। তাদের দাবি, অতি দ্রুত ওই ষাঁড়টিকে এলাকা ছাড়া করা হোক। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অনিল প্রসাদের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, অন্ডাল। এখন আবার একটু বিরতি, সঙ্গে থাকবেন। स्वास्थ्य की रक्षा और अधिक पौष्टि, एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी चपाटी पूरी पराठा, एग्रो फ्रेश आटा। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহে সঠিক পুষ্টি, এগ্রো ফ্রেশ আটা রুটি, এগ্রো ফ্রেশ আটা। বাছাই করা গম থেকে তৈরি, স্বাদ ও গন্ধে মনের পছন্দে मनपसंद चक्की फ्रेश आटा, मनपसंद। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391, 9332185842। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। খবর শেষ করার আগে এখন হেডলাইন্স ফিরে দেখবো আরো একবার। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। আসানসোলের লচিপুর রেড লাইট এরিয়ায় জেলা শাসক ও পুলিশ কমিশনারের নেতৃত্বে চালানো হলো বিশেষ অভিযান। ৪৫ জনেরও বেশি নাবালিকাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আসানসোলে উৎকর্ষ বাংলা যোজনার অন্তর্গত রাজ্য সরকারের তরফে পশ্চিম বর্ধমান জেলা শাসক ভিভু গোয়েলের নেতৃত্বে এডিডিএ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বৈঠক। রানীগঞ্জকে সাব ডিভিশন করার বহু প্রতীক্ষিত দাবি এবার বিধানসভায় তুলবেন বিজেপি বিধায়ক। রানীগঞ্জে এক সাংবাদিক সম্মেলন থেকে এদিন এমনটাই জানালেন কুলটির বিজেপি বিধায়ক ডাক্তার অজয় পদ্মার, বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারিরা। পশ্চিমবঙ্গ হিন্দি একাডেমির তরফে রানীগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বিদ্যার্থী সংবাদ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ হিন্দি একাডেমির অধ্যক্ষ এবং জোড়াসাঁকো বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিবেক গুপ্তা। আগামী 12ই অগস্ট আসানসোলে অনুষ্ঠিত হবে সানমার্ক ফাউন্ডেশনের তরফে রাম অবতার গুপ্ত প্রোৎসাহিত অনুষ্ঠান 2021।
রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সের তরফে অনুষ্ঠিত হওয়া অনলাইন ড্রয়িং কম্পিটিশনের স্থানাধিকারীদের করা হলো পুরস্কৃত। প্রতিটি বিভাগ থেকে 4 জন করে স্থানাধিকারীদের করা হলো পুরস্কৃত। রানীগঞ্জের শিশুবাগান মোড়ে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের মূর্তির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব রাউন্ড টেবিল ইন্ডিয়া নিজের কাঁধে নিয়েছে। রানীগঞ্জের বিদায়ী বড় চেয়ারপারসন সঙ্গীতা সারদা মর্মর মূর্তির সৌন্দর্যায়নের কাজের উদ্বোধন করলেন এদিন। পেগাসাস সহ পেট্রোল ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরোধিতায় প্রতিবাদ বিক্ষোভ কংগ্রেসের আসানসোলের ঘড়ি মোড়ের কাছে প্রতিবাদ জানিয়ে পোড়ানো হলো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পুষ্পতলিকা। গত কয়েকদিনে তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে শিল্পাঞ্চল জুড়ে, আর এতেই আশঙ্কা বাড়ছে নিম্ন দামোদর অববাহিকায় মাইথন পাঞ্চেত ও ডিভিসি জলাধারে জল ধরে রাখা অসম্ভব হচ্ছে। এর ফলেই জল ছাড়া নিয়ে আশঙ্কা বাড়ছে জেলার মানুষের। আসানসোলে জেলা বিজেপির পার্টি কার্যালয়ে রাজ্যে করোনা ভ্যাকসিনের দুর্নীতি নিয়ে সরব হলেন বিজেপি নেতৃত্ব। এলাকার খুদে ফুটবল প্রেমীদের হাতে তুলে দেওয়া হলো ফুটবল। অন্ডালে ষাঁড় গরুর গুঁতনিতে আহত যুবক, আতঙ্কিত এলাকার মানুষ। পুলিশকে অভিযোগ জানানো হয়েছিল, তবু কাজ হচ্ছে না বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। এখনকার মতন এই পর্যন্তই। দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইওর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।